So in the last class I started, I am just taking a small recap. In the last class I started with your three-dimensional space, X, Y, Z. Okay, I was talking about this three-dimensional space because in 2D you have already studied your XY plane. Here you are having coordinates in a ordered pair, and the coordinate x comma y. So it was represented by this moving x distance and y distance. You remember this thing? Now, if you are in, you are just extending this from R2 to R3. R3 means we have now three dimensions. What is dimension exactly? You will be studying in your linear algebra course. But here we have, because three position, you can say, if you want to locate a point here in the space, it is called space now. It was a plane, it is a space. So if you want to locate a point, you must know the coordinate of x, y, and z. Only then you can locate a point on this space. So it is a three-dimensional space. So here you can see, okay, you can take any point P here somewhere, because it's a three dimension. So you have to visualize all the time. You know this thing, because I am just drawing this thing on the plane, and but actually it is a three dimension. So this point will be where, if you are sitting in a room, so whenever you want to visualize this space, you have to visualize this your room, in your room, because this room is cuboid or cube shaped. You can see, take a corner at any wall, so that point will be origin, and here you can take three perpendicular, usually perpendicular axis, x axis, y axis, z axis. So it will give you a coordinate frame. We can say it is a coordinate frame where you have coordinates x, y, z. So point x, y, z means you have to move x distance on x axis, then y distance, move x distance here, then y distance, and then it is suppose y distance, and it is your z distance. So this point will become x, y, z. So x coordinate is called your abscissa, y coordinate is called ordinate, and z coordinate is called applicate. These things we have already done in the very first class. And then I gave you one problem, in fact. What? How to take octants. And as I told you, okay, in the plane you will be having what? Four quadrants. First quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. Okay, boy. Aditya Singh. Yes, sir. So in the xy plane, in the plane, how many quadrants are there? Quadrants. 4 quadrants, sir. Sir, Four one. quadrant. क्वाड्रेंट कितने हैं? क्वाड्रेंट वन कौन कह रहा है? Sir, 4. फोर हो 4. गया, ठीक है ना? जिससे मैं नाम ले क्वेश्चन पूछूं वही जवाब दे भाई, बाकी लोग म्यूट रहेंगे. ओके, सो यू आर फोर क्वाड्रेंट्स में, यू नो दिस इज अ फोर क्वाड्रेंट्स. सो व्हाट अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट? आदित्य सिंह, व्हाट इज द साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट? यू नो एक्स और वाई के साइन क्या होंगे यहाँ पे? एनी आइडिया? Sir, minus x. Sir, minus x minus y. ठीक है, मतलब बोथ आर माइनस है ना. यू नो दिस थिंग, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, यू हैव स्टडीड इट several times. So here you have four quadrants. First is all are positive. Second is positive, negative, x positive, y negative. Third is both are negative. Fourth is because you are here.
तो y is negative, x positive. Okay. सर सेकंड में सर गलती हो गई सर, माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस नहीं। अच्छा चलो माइनस प्लस कर दो. Thank you. Okay. So these are the coordinates. Now the question was, okay, if you have now 3-dimensional figure, so how many, here what I will say now octants. So how many octants I can have here? किसी ने सोचा इस बारे में? 8 ऑप्शन सर। 8 octants. जैद मुस्तफा बताइए 8 octants कौन से और कैसे होंगे? Can you plot it? सोचा इसको, किसी ने प्लॉट किया? यस सर। फर्स्ट ऑक्टेंट में तो एक्स वाई जेड एंड साइंस प्लस प्लस प्लस। नहीं एक मिनट, फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या होगा आपका? फर्स्ट ऑक्टेंट क्या होगा? पॉजिटिव ओ एक्स वाई, ओ एक्स वाई जेड. फर्स्ट ऑक्टेंट पॉजिटिव पॉजिटिव means all three are positive. Eh? This one, it is your first octet. Then second octet. Second में क्या एक्स वाई करेंगे? डैश एंड जेड हाँ, क्योंकि if you see it is your like this. three-dimensional figure, so you can extend. So this OX is positive side, this OX dash is negative x-axis. Similarly, OY is positive, OY dash is negative. And similarly, OZ is positive and OZ dash is negative. So if you see, you are having in this way 8 blocks you can see here. 8 blocks. I have downloaded one figure from Google. If you can see this figure, is it visible? यस सर। थोड़ा इसे अगर बड़ा Yes, कर sir. रहे हैं तो थोड़ा ब्लैक हो रही है, इसे स्मॉल में देखें आप. देखिए क्या दिख रहा है? So here you can see this purple. There are, if you see, there are 2 slices. One slice is purple and one slice is orange. दिख रहा है ये? Yes, sir. Wait. Yes. So here if you see, this is your, they are taking that side positive. ये जो आपका बॉक्स है, तो यहाँ पर प्लस का मतलब क्या हुआ? दिस इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस. तो एक यू कैन सी, इफ यू सी द रूम्स है ना ऑक्टेंट्स को, तो वन रूम इज देयर वेयर ऑल दीज 3 पॉजिटिव, देन वन रूम इज दिस साइड वेयर वाई इज नेगेटिव. सिमिलरली 2 रूम्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर. इफ इट इज योर फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, कितने हो गए टोटल? 4 रूम्स हो गए. साइंस आप देख सकते हैं कि अगर पॉजिटिव साइड में एक्स एक्सिस के तो एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, बट नीचे आ गए आप, इफ यू आर सीइंग इट इज अ ग्राउंड फ्लोर, तो यहाँ पर आपका जेड क्या हो जाएगा? माइनस. तो 4 रूम्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस ऑरेंज कलर वॉल एंड 4 रूम्स ऑन द लेफ्ट, 4 राइट 4 लेफ्ट, तो टोटल 8 हो गए. इज इट क्लियर? यस सर। यस टोटल यू हैव 8. इसीलिए हम ऑक्टेंट्स कहते हैं कि all these 3 coordinate axes will making 8 different coordinates. First octant में all the signs will be positive. Second octant में you can take x positive, y positive, z negative, या x positive, y positive, y negative. सर So in आई हैव this ए way- क्वेश्चन सर. Yes. सर अगर यहाँ पे ओरिजिन सर बॉक्स के बिल्कुल बीचों बीच में अगर किसी कोने वाले पॉइंट को ओरिजिन मान ले तब भी 8 ऑक्टेंट्स बनेंगे? अगर आप कोने वाले पॉइंट को ओरिजिन मानेंगे तो आपका एक्स वाई जेड फिर वहां से स्टार्ट होगा ना, यहाँ से स्टार्ट कोई होगा. If you are taking the corner point, then your x जी axis, सर. y axis, z axis will be what? They will starting from O. Okay. So octant will be shift. यस सर. है ना, यहीं से नहीं जाएंगे octant पे, ओके सर. तो शिफ्ट हो जाएंगे. ये तो डेफिनेशन है कि 3 mutual perpendicular axes meeting at the point O. That meeting point is called origin. ठीक है.
तो जो बेसिक डेफिनेशन है उसको हमेशा ध्यान में रखना है। डेफिनेशन अगर आपको ये देखो, मैथमेटिक्स में डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको डेफिनेशंस याद है तो आप कोई भी चीज़ समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है हमारी। तो आप कहीं पे भी कॉर्नर पॉइंट्स लेंगे तो यू विल हैव टू ड्रॉ 3 परपेंडिकुलर लाइंस ऑलवेज। जैसे ही आप 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे यू कैन हैव ऑलवेज 8 ऑक्टेट्स। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे प्लॉट करना चाहूँ सपोज, तो इफ आई एम फर्स्टली टेकिंग योर फर्स्ट ऑक्टेंट तो प्लस 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 हो जाएगा। सेकंड में आई एम टेकिंग, फर्स्टली आई एम टेकिंग सपोज एक्स पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव साइड में कितने ऑक्टेंट्स आएंगे आपके पास, यू कैन सी अगर एक्स पॉजिटिव है तो यू कैन हैव 4 चॉइसेस। ओके, फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड अगर मैं प्लस ले लूँ तो आई कैन टेक वाई माइनस जेड पॉजिटिव। थर्ड octane my x will be positive always. I can take now x positive, y positive, z negative है ना। x positive, y is positive, z negative, नीचे वाला रूम आ गया। As I told you कि you have 4 rooms actually। तो when x positive, तो x positive के साथ कितने रूम्स बन सकते हैं, फर्स्ट रूम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एक और बन जाएगा। दैट यू कैन टेक प्लस माइनस माइनस। देखो यही तो चॉइस है when x पॉजिटिव। ओके, ये 4 हो गए तो ये 4 आपके कौन सा, इट इज एक्चुअली योर राइट हैंड साइड, तो इस साइड के आ रहा होंगे। सिमिलरली इफ यू विल टेक एक्स नेगेटिव, एक्स नेगेटिव में कितने चॉइस होंगी, एक्स नेगेटिव मीन्स नाउ यू आर ऑन दैट वे, अब आप उस साइड पर है, उस साइड में कितने चॉइसेस है आपके पास, एक्स नेगेटिव है। देखिए एक्स नेगेटिव में फर्स्ट चॉइस आई एम टेकिंग एक्स नेगेटिव में वाई पॉजिटिव जेड, यानी दैट ये वाला पोर्शन आ गया आपका, वाई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव। देन 6 ऑक्टेंट आई एम टेकिंग एक्स नेगेटिव फिक्स कर दिया मैंने, पहले एक्स पॉजिटिव फिक्स किया था तो यू गॉट 4 ऑप्शंस। नाउ आई एम फिक्सिंग एक्स नेगेटिव, सो माइनस माइनस प्लस आई कैन टेक, देन 7 आई कैन टेक माइनस फिक्स प्लस माइनस एक्स और जेड नेगेटिव यानी कि नीचे आ गया और वाई पॉजिटिव, एंड द 8 वन यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 8 वन विल बी व्हाट, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो इन दिस वे यू गॉट ऑल 8। अब अगर आप सोचें कि मैं वाई पॉजिटिव लेके चलूँ तो अगर आप वाई पॉजिटिव देखेंगे तो क्या होगा, इट विल बी रिपीटिंग, वो इन्हीं 8 केसेस में आ जाएगा। अगर आप वाई पॉजिटिव लेंगे और फिर केस बनाएंगे कि वाई पॉजिटिव, तो वाई पॉजिटिव के देखो 4 केस ऑलरेडी हैं। वाई पॉजिटिव के साथ एक केस ये हो गया, दूसरा केस ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है ना। तो हर एक के साथ 4 केसेस हैं, लेकिन उसमें कुछ रिपीटिंग होंगे। तो अगर आप एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव लेंगे तो यू विल बी गेटिंग ऑल 8 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स, total 8 positions will be there, different positions. So in this way you can draw or you can plot any point on the space. You can see in the student, suppose if some point is there -1, -2, -3, so here it will be what, all the minus signs are there. तो ये आपके पास हमने 8 coordinate दिया, it means what कि you will have to move on x dash minus sign, so you will move with there -1, then y is minus, so y minus means on this way you will have to move because it is minus, and then z is minus means you have to go downward. तो ये जो point आपका आएगा यहाँ पर नीचे आएगा। So this concept is clear now, octants and this coordinates lines. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So next topic I have distance between 2 points. Distance between 2 points. And where are your points now? Where are your points now? 3-dimensional. Yes, In space. yes. So I already know the distance between 2 points on 2-dimensional space. On R2 I already know, है ना। तो भाई अनिल रावत, PHB 29,
अनिल आवाज एब्सेंट है यहाँ यस पे। सर। जी यस प्रॉम्प्ट रिप्लाई सर। आना चाहिए आप लोगों का भी। क्या बात है, सो रहे थे क्या अभी? नहीं सर, अनिल, हाँ थोड़ा चलिए, आई हैव अ नेटवर्क इशू है क्वेश्चन। सर। अच्छा चलिए, I have a question. If you have suppose यस 2 सर। points on R2 on 2 dimension, so what is the distance formula between 2 points? सर x1 प्लस x2 अपॉन Hmm. क्वेश्चन फिर से सुनिए सर ध्यान से। If you have 2 points, suppose P and Q on R2, okay? So on R2 means it will be having coordinate सर x1, यस y1, सर। x2, y2. So what is the distance formula? बाकी कोई नहीं बोलेगा, यस जिससे सर। पूछा जा रहा है वही बोलेगा। बताइए। I am asking the distance formula. What is the distance between P and Q? How to find it? सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 minus y1 डिस्टेंस में अपॉन में आएगा कभी कुछ क्या? अगर x2 इज इक्वल टू x1 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नहीं नहीं सर, सर बताना सर। यार बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार। सर दक्ष आप बताइए। अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यस, this is a distance formula. If you want to find a distance, I can write PQ. So it is under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ओके, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है, बहुत कॉमन फार्मूला, आपने मेरे ख्याल से पढ़ लिया होगा 8-9 क्लास में। कब पढ़ा था फार्मूला पहली बार ये? 9th class में सर। हाँ, ये डिस्टेंस फार्मूला है। अपने पीछे का स्टेप डिसाइड आप रिवाइज करते रहे आप सब लोग, ठीक है? अनिल रावत, ओके सर। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ सर से हैं अनिल अलीगढ़ में। रावत? अलीगढ़ से ही हैं? सर अलीगढ़ से। अलीगढ़ में कहाँ हैं आप? सर मसूदाबाद चौराहे पे। ठीक है, आवासु तो ये सब चीज, ठीक है, सब चीजें पढ़िए। जो भी लोकल लोग हैं और अगर वो आ सकते हैं, सर कुछ भूल डाउट है तो गए थे सर। डिपार्टमेंट में, सुनिए मेरी बात, लोकल लोग अगर डिपार्टमेंट आ सकते हैं तो डिपार्टमेंट आके डिस्कशन कर सकते हैं उससे, ठीक है? टाइम ले ले कभी भी कि सर हमें कुछ डिस्कशन करना है। चलिए खैर, सो इट इज अ डिस्टेंस फार्मूला, यू नो दिस वेरी वेल। So now I want to find the distance between 2 points on the space. If you have a point on the space, then what is the formula? That I want to know. है ना? And I will derive that formula by using this plain formula. क्योंकि ये information तो मेरे पास already है, लेकिन उसके लिए I have to take some projection maps. So let me draw some this. So suppose you have 2 points O, and I am taking this x-axis, this is suppose your y-axis, and this is your z-axis. Okay, this are 2 points in the space. वो understood आपका जब 3 dimensional geometry पढ़ा हूँ मैं, तो everything is on the space. So what you will do? So you will assume 2 points. Suppose I have 2 points here. One point is suppose P. This is your P point. X1, Y1, Z1, and I am taking the coordinates. And suppose second point is somewhere. This is your point Q, whose coordinates I am assuming x2, y2, z. ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ होगा P आपका? अगर आप रूम में बैठे हुए तो वेयर इज दिस पॉइंट P? सर रूम के अंदर कहीं पे भी। अंदर कहीं पे, यस। जो आपका रूम का बीच का स्पेस होता है, इसमें कहीं पर होगा, और एक Q पॉइंट होगा ना, यू जस्ट विजुअलाइज इट। अब आई वांट टू फाइंड व्हाट इज द डिस्टेंस। आई डोंट हैव फॉर्मूला नाउ, but I know I have the formula for
द प्लेन, यानी कि ये जो XY प्लेन है, इट इज नॉट प्लेन, इट इज योर 2 डायमेंशन. So I have a formula for the plane. So what I will do, I will do some geometry here. I will take the projection of this point on the XY plane. Projection का मतलब क्या हुआ? Just draw a line, straight line, है ना? Here, perpendicular to the XY plane. ये point आपके इसकी projection कहाँ आएगी? On the XY plane. अब इस पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस पॉइंट के n के? x1, x1 x y1 y 0. 0 होगा एग्जैक्टली, लेकिन आई वांट टू यूज द ज्योमेट्री ऑफ प्लेन्स, सो आई एम टेकिंग x1 y1. ओके, ये सपोज करो कि आपका ये अभी प्लेन पे आ गए हम, तो जब प्लेन पे आ गए तो आई एम ऑन द प्लेन नॉट स्पेस, तो मैंने x1 y1 लिखा इसे, बिकॉज आई वांट टू यूज द डिस्टेंस फार्मूला फॉर द प्लेन विच वी हैव ऑलरेडी नो, इसलिए. सिमिलरली q का प्रोजेक्शन मैंने लिया यहाँ पर, तो q विल बी हियर समवेयर. आई एम टेकिंग द प्रोजेक्शन ऑफ q हियर, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा. सपोज आई एम टेकिंग इट इज योर n एंड कोऑर्डिनेट इज x2, y. ओके, एंड ये जो दिस इज द डिस्टेंस, ये इनके बीच में एक डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ पर. अब ये ध्यान, ये क्या PQ और MN इक्वल है आपस में? no Yes, sir. sir. यस सर. बताइए क्यों? यस सर, हाउ? यस सर, इक्वल है क्योंकि प्रोजेक्शन लिया है. नहीं है सर. PQ, I am saying the distance between PQ is equal to distance between MN. Is it correct or not? No, sir. Correct. Not correct, because this Q line is not, है ना? It is not in the straight line. Parallel. This Q line is somewhere on. This is a slant line, है ना? तो you can see, और यहाँ पर प्लेन में आपके पास सिर्फ एक ही लाइन होती है, तो this PQ is not equal to MN. हाँ, लेकिन अगर मैं P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं सामने ऑन द लाइन NQ, तो जो PL होगा, PL इक्वल टू MN होगा, है ना? Yes, बिकॉज sir. दिस पॉइंट, आपके रूम में 2 पॉइंट्स आप ड्रॉ करिए खुद ही, एक पॉइंट P ले लीजिए, जस्ट टेक अनदर पॉइंट Q, तो PQ जो है वो डिस्टेंस आपकी इस तरीके, इट विल बी लाइक स्लैंट लाइन, और जब आप प्रोजेक्शन लेंगे वो हमेशा स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आएगी, तो इक्वल तो नहीं होगी, PQ लाइन बड़ी होगी. समझ में आ रहा है बात? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? नो? यस सर. यस. Yes, sir. अगर ये ज्योमेट्री आपकी समझ में आ गई तो फॉर्मूला हम इजीली ड्राइव कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये ज्योमेट्री हमें करनी थी थोड़ी सी. ओके, सो PQ इज नॉट इक्वल टू MN, कीप इन माइंड, है ना? बट दिस PL विल बी इक्वल टू ऑफ कोर्स MN, क्योंकि ये लाइन आपकी पैरेलल है और ये 2 लाइंस जो है आपके, ये भी दोनों पैरेलल है आपस में, तो ये आपकी डिस्टेंस इक्वल होगी. So what I have done here, so I have done this P, ये आप थ्योरी लिख सकते हैं, थ्योरी में मैं लिख दूं, आप खुद देख सकते हैं, बुक में थ्योरी सब गिवन है. इसमें आपको क्या लिखना होगा? लेट अस सपोज P be a point on the space x1 y1 z1, let q x2 y2 z2 be another point, and we want to find the distance between PQ. So we will take a projection of P on M whose coordinates is x1 y1. We will take the projection of Q on N whose coordinates are x2 y2. Now we know that देखो, अगर मैं MN लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये डिस्टेंस है, अगर वेक्टर लगा दूंगा तो वो वेक्टर बन जाएगा. अभी MN लिखा है, इट मींस इट इज अ डिस्टेंस. तो वी नो दैट MN स्क्वायर इज स्क्वायर ले लिया, तो व्हाट इज MN स्क्वायर? x2 माइनस जो भी आपने बताया था, Z ने बताया था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, है ना? ये डिस्टेंस फॉर्मूला है. आई एम टेकिंग स्क्वायर, सो आई एम रिमूविंग द अंडर रूट. ये MN फॉर्मूला होगा प्लेन में, बिकॉज वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द प्लेन, फॉर द डिस्टेंस ऑन between 2 points on the plane. Okay, now I want to use this concept as I told you, so I will do some geometry. Now here if you see, you have a triangle PLQ. देखिए ट्राइंगल PLQ कैसा ट्राइंगल है? इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक? सो
the right angle triangle PLQ, we have Pythagoras theorem क्या कहती है? What is Pythagoras theorem? Anyone? PQ square Q square equals to L square plus साइड QL. का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. Yes, exactly. Very good. PQ square is equal to PL square plus LQ square. है ना, ये हमारा पाइथागोरस रिजल्ट है. आपको you are very much familiar. And what about PL? अब अभी मैंने क्या बताया? What is PL? PL is equal to MN. equals है ना? MN. You know this thing, but PL square is nothing but it is equal to MN square. So it will be what? अभी आपने कैलकुलेट किया है ऊपर x2 minus x1 square plus y2 minus y1 whole square. And what about LQ? LQ को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए सर LQ is what? Z2 माइनस Z1. Yes, क्योंकि LQ is the distance of this. So LQ को I can take NQ minus NL. I can take it. देखो, this is your LQ. तो जो whole distance, क्योंकि जो आपके LQ है, it is your parallel to Z axis. तो ये Z axis से along जो भी coordinates होंगे वो करेगा. तो you have NQ the whole distance minus NL. And NQ is how much? NQ is Z2. And NL is how much? NL कितना होगा? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो जो PM है Z1. वही NL है. तो it is how much? Z1. Okay? Because this, you can see here, this NL is equal to MP. That's why. Okay? So now put this formula, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है? I want to find what is PQ square. तो इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे वापस PQ square में. So your PQ square will become how much? PL square means x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square and plus LQ square means how much? Z2 minus Z1 whole square. Okay, so this is PQ square. So what about PQ, which is a distance? इसका आप अंडर रूट ले लेंगे. So if you see, it is just similar that of distance formula between 2 points. क्या हो गया? Only Z coordinate is adding here. ये तो हुआ. Yes, sir. So you got the formula, distance formula between 2 points is nothing but x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. Now if somebody asks what is the distance formula between 2 points on 4-dimensional space on R4, क्या फॉर्मूला होगा बताइए? तो उसमें उस डायमेंशन के स्क्वायर्स ऐड हो जाएंगे. हाँ, अब आपको एक्सटेंशन, यू कैन सी इजीली कि इट इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ द फॉर्मूला फ्रॉम 2 डायमेंशन टू 3 डायमेंशन. तो यहाँ से यू कैन सी कि अगर आपके पास फोर्थ कोऑर्डिनेट है, सपोज उसका मैं कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड डब्ल्यू ले लूँ, कोई क्या x1 y1 z1 सपोज w1. सो यू नो द फोर्थ कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर और ऐड हो जाएगा विद अंडर रूट साइन. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द डिस्टेंस फॉर्मूला. सो इट विल गिव यू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. तो अगर एक पॉइंट ओरिजिन हो गया, देन व्हाट विल हैपन? द डिस्टेंस of the point, suppose I am taking P, X, Y, Z, comma X, Y, Z from the origin. Origin के coordinates क्या होते हैं? 0,0,0. Yes. Is, so it will be what? Under root. अब एक coordinate आपका 0 है, तो it will be what? X square plus Y square plus Z square. तो ये आपका सिंपल ऑब्जर्वेशन है. इससे आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये लाइन O है और ये लाइन P है, so it is nothing but simple this under root. Okay, good.
So it was a distance formula, very first formula which you have. These formulas are very important. I will be using these formulas for calculating so many things. Next we have ratio formula. Ratio formula. रेशियो फार्मूला भी आपने जरूर पढ़ा होगा 2 डायमेंशन में कि इफ यू हैव अ लाइन एंड सम पॉइंट इंटरसेक्टिंग या dividing the line internally, then how to find the coordinates of that point. Okay, suppose you have a line on 3 dimension on a space. This is a line, some PQ. Okay, this is your x, y, z. So p coordinate is your x1, y1, z1, and q coordinate is x2, y2, z2. And suppose you have some point r, है ना, which is dividing this internally का मतलब क्या है कि the point r lying between p and q, है ना, यहाँ डिवाइड कर रहा है. अब वो डिवाइड बाइसेक्ट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. इट इज समवेयर, इट इज डिवाइडिंग द लाइन इनटू m1 into m2 ratio. ठीक. So I want to find what is the coordinate of this r. Suppose I am taking x, y, z. I want to find what is the coordinate of this r if it is dividing in the ratio m1 m2. I want to find this. So I want to find कोऑर्डिनेट. भाई आप लोग क्लासेस में जो एंटर हो रहे हैं, आप टाइमली एंटर हो जाया करिए. आप क्या फर्स्ट क्लास थी तो मैंने बहुत से लोगों को अलाउ कर दिया है, बट टुमारो ऑनवर्ड्स ऑल ऑफ यू हैव टू एंटर विद इन 5 मिनट्स और 7 मिनट्स, अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ टू एंटर यू. ठीक है. सब क्लास देयर आर सम क्लास एथिक्स, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो. अब आप बीच बीच में, अब एक लड़का भी आ रहा है, बताओ क्लास खत्म होने वाली है. सो इट इज डिस्टर्बिंग. आई एम ऑल द टाइम एडमिटिंग स्टूडेंट्स. तो आप सब लोग क्लास में एंटर हो जाएंगे 5-10 विद इन 5 मिनट्स और 7 मिनट्स. इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. और आई एम ऑल्सो रिकॉर्डिंग योर लेक्चर्स. मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ. आई विल बी शेयरिंग यू द लिंक एंड आई विल बी कीप अपलोडिंग ऑन द यूट्यूब. तो आपको मैं लिंक शेयर करता रहूँगा रिकॉर्डिंग का, आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो शेयर नहीं कर सकते पूरी. तो मैं यूट्यूब में आपका एक वो बना दूंगा चैनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से. तो उसमें आप अपना लेक्चर देख सकते हैं. अगर आपको कुछ देखना है, जो लोग नहीं अटेंड कर पा रहे क्लास किसी वजह से, तो आप वहाँ देख लेंगे. ठीक है. तो आई विल कंटिन्यू दिस विद सर यही ऑन द वाला नेक्स्ट. हाँ. सो हाँ भाई, क्लास अभी टाइम कब है, आप नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लीजिए अभी. आई विल कंटिन्यू दिस लेक्चर इन द नेक्स्ट क्लास. ओके. सो बाय क्लिकिंग ऑन द सेम लिंक यू ज्वाइन अगेन. आई विल कंटिन्यू दिस लेक्चर. अभी आपका टाइम है. ओके. Okay, sir. हाँ, इस मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूँ बिकॉज Okay, लेस देन sir. अ मिनट Thank इज you. देयर. ऑल ऑफ यू ज्वाइन देयर नाउ बाय क्लिकिंग ऑन द सेम लिंक. आई विल कंटिन्यू इट.